So good morning everyone. Let us start today's class. So already started information coding and theory chapter. So today start with Shannon Fano coding. Lots of coding techniques are there. We'll study here Shannon Fano coding and the Hammond coding. So how to start with Shannon Fano coding? I will give you a little bit tabular explanation here, so that you will understand easily. So first of all, we'll take one example. Okay, using that example, we'll discuss. What is the process actually I want to mention here? See, so we are having several message signals. Those are M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. With their probabilities mentioned just the right side. Okay, see here. Probability also mentioned here. So probability of M1 is half, probability of M2 is 1 by 8, probability of M3 is 1 upon 8. Again for M4, 1 upon 6, M5, 1 upon 6, M6, 1 upon 16. These are 1 upon 16, 1 upon 16, 1 upon 16. M7, 1 upon 32, and M8, 1 upon 32. So let us just add all these probabilities. देखो 1 by 32, 1 by 32, 1 by 32 क्या हुआ 1 upon 16 होगा. Then देखो यहाँ पे 1 upon 16 plus 1 upon 16 plus 1 upon 16 and ये दोनों मिला के 1 upon 16 हो गया. So 4 into 1 upon 16. Okay. So in this way, if you add, so 1 upon 4 हो गया. ठीक है 1 upon 16 plus 1 upon 16 plus 1 upon 16 plus 1 upon 16. So 4 into 1 upon 16, so 1 upon 4 हो गया. So up to this 1 upon 4 हो गया. Now देखो यहाँ पे 1 upon 8, 1 upon 8 क्या हो जाएगा, ये भी 1 upon 4 हो जाएगा. So up to this it was 1 upon 4
Okay, and adding these two, this is also 1/4. Okay, and this is also 1/4. So 1/4 plus 1/4 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. So that means क्या हुआ? Up to this, if we add all these probabilities, we will get 1/2. Okay, so देखो ये 1/2 है, नीचे 1/2 है. So total कितना हुआ? 1. So always we know probability should be limit. Total probability must be 1. That must not be beyond that. Okay, so that is our probabilities. And these are the messages. Now the right side of the table, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? 1. This is first step, second step, third step, fourth step, so on and so forth. So you mention some steps here. First step, second step, third step, fourth step, fifth step. Okay. Now, what will you do in the first step? We'll divide it by two categories. You have to make, listen carefully everyone, you have to make this probability group, okay, by two groups. You have to divide all the probabilities by two groups. And group कैसे होना चाहिए? तो ग्रुप ऐसे बनाना होगा जैसे वो जो दो ग्रुप होगा, दो ग्रुप में प्रोबेबिलिटी लगभग सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोग दो ग्रुप बनाए हैं. ये जो है ये पूरा प्रोबेबिलिटी को एक ग्रुप में, और ये जो हाफ है तो वन ग्रुप में. क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट हाफ हो गया. ठीक है, ये भी हाफ है, तो दो ग्रुप. मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता भी, ये एग्जैक्टली सेम होगा तो अच्छा है, नहीं तो एज क्लोज एज पॉसिबल. जो तुम दो ग्रुप बना रहे हो वो दो ग्रुप में प्रोबेबिलिटी का टोटल प्रोबेबिलिटी दो ग्रुप में लगभग सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो गया, ये हाफ है, इधर भी हाफ है. इसलिए देखो हम लोग क्या किए हैं, ये जीरो ग्रुप है, ये फर्स्ट हाफ को, फर्स्ट मैसेज को जो प्रोबेबिलिटी हाफ, इसको हम जीरो में डाल दिया, और बाकी सारे जो है नीचे में वो सिंगल ग्रुप में है वो वन कर दिया. तो 0 1 ग्रुप हो गया फर्स्ट टाइम. किसी को कुछ डाउट है तो बोलो. फर्स्ट टाइम में 0 1 ग्रुप हो गया. तो ये वन ग्रुप है, ये जीरो का ग्रुप है. नाउ ये दैट मीन्स क्या हो गया, मैसेज A1 के लिए हो गया. सो नाउ देखो यहाँ पे जो है अभी ये तो सेम ग्रुप में आ गया इतने सारे प्रोबेबिलिटी. सेकेंड फेज में हम लोग क्या किए हैं, देखो देखो यहाँ पे भी दो ग्रुप बनाया है. ये दो मिला के एक ग्रुप, और ये 5 मिला के और एक ग्रुप है ना. तो हम लोग ये कैसे किए हैं, क्यों किए हैं ये दोनों को एक साथ में? देखो 1/4, 1/4, ये जो होगा 1/8, 1/8 सॉरी 1/8 प्लस 1/8, ये कितना होगा ऐड करने से तुमको क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा. तो ये जो ग्रुप था जीरो ग्रुप का टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया. और बाकी सारे जो है यहाँ पे, बाकी सारे जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है मीन्स 1/16 टू दिस, जो मैंने जो लोग ग्रुप दिया दिखाया, ये देखो ये जो हम करोगे तुम 1/16, 1/16, 1/16, और ये भी 1/16 हो जाएगा. सो 4 इंटू 1/16, सो 1/4 हो गया. तो देखो ये जो तुम ग्रुप बनाया है, ये 1/8 प्लस 1/8 ऐड करोगे तो 1/4 हो गया. ये नीचे में जो जो प्रोबेबिलिटी था सम करोगे तो 1/4 हो जाएगा. इसलिए देखो M2 एंड M3 एक ग्रुप में, एंड M4 से M8 तक और एक ग्रुप में रखना. इसलिए देखो ये 0 0 हो गया, ये जीरो ग्रुप में, ये वन ग्रुप में. ओके, सो फेज 2 में ऐसा हम लोग किए. ठीक है, नाउ तुमको फेज 3 में आना चाहिए. स्टेप 3 में देखो
ये 0 ये 1 है, तुमको क्या करना है, ये 0 है ये 0 है, दोनों को हम और डिवाइड किए, ऊपर को 0 नीचे को 1, ये भी डिवाइड हो गया, क्योंकि ये 0 0 क्या है 1818 था, तो तुमको ऑलवेज 0 1 लाना जरूरी है। इसलिए ये जो 1/8 जो था जीरो ग्रुप में, वो भी माइन्यूटली डिवाइडेड हो गया, क्या है ना 0 है ये 1। फिर देखो ये जो सारे का सारे पांचों जो 1 था, इसको भी तुमको ग्रुप ही जब करना है, ग्रुप से ग्रुप डिवीजन करना। तो देखो क्या क्या ग्रुप डिवीजन यहाँ पे बनाया है हम लोग। देखो ये जो दो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो दो 1/16 1/16 है ना, 1/16 1/16, ठीक है। तो 2 × 1/16 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/16 1/16, सो 1/8 हो जाएगा। ये भी देखो 1/32 1/32 1/16, सो 1/16 प्लस 1/16 1/8 हो जाएगा। इसलिए देखो ये हम लोग ये पांचों को 3 और 2 में भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये दो 1 देखो 0 ग्रुप में आ गया, ठीक है, और ये जो 3 1 है ये 1 ग्रुप में आ गया। सो डिवीजन, अब फिर से डिवीजन हो गया, ये 1 1 क्यों हम लोग ये दोनों को एक साथ में लिए, क्योंकि देखो ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पे दिखाया है, प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। तो ये जो दो ग्रुप है इसका प्रोबेबिलिटी M3 M4 और M5 लेके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गया, और M6 M7 M8 को लेके 1/8 हो गया, इससे दो ग्रुप हो गए 1/8 1/8। नाउ देखो ये 0 0 को फिर से हम लोग डिवाइड कर दिया, 0 और 1, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखो और 3 1 है, ये 3 1 को भी तुमको 0 1 ग्रुप से नेक्स्ट 4 ग्रुप में 4 फेज में ये भी डिवीजन लाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो तीनों 1 है, कितना 1 है, 3 1 है ना, ये देखो 3 1 है यहाँ पे, ये 3 1 को हम लोग फिर से दो ग्रुप में बांटा, ये 0 ग्रुप में चला गया, और ये जो दोनों 1 था वो 1 ग्रुप में चला गया। क्यों चला गया, देखो ये 1 मतलब क्या है M16, तो M16 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/16, M6 का प्रोबेबिलिटी 1/16, और M7 M8 को एक साथ में जुड़ा, M7 M8 को एक साथ में जुड़ा, क्यों जुड़ा है एक साथ में, क्योंकि 1/32 प्लस 1/32 तुम करोगे, ऐड करोगे, तो ये दोनों का एक साथ में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/16, तो इसलिए ये दोनों एक ग्रुप में हो गया, और ये M6 एक ग्रुप में हो गया। तो देखो ये M6 है, ये 1 को एक ग्रुप में 0 ग्रुप में आ गया, और M7 M8 को 1 1 दे दिया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फेज नंबर 4। ना फेज नंबर 5 में क्या हो गया, देखो बाकी सारे के यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ हो गया, सिंगल सिंगल डेटा आ गया, 0 नहीं तो 1 आ गया, ये भी 0 हो गया, तो ये दोनों 1 है, तो दोनों 1 को हम लोग फिफ्थ जो स्टेज है वहाँ पे देखो क्या किए, ये 1 0 बन गया, ये 1 1 बन गया, 0 1 हो गया, और तो डिवीजन नहीं होगा। इन दैट वे every time you have to make दो ग्रुप, 0 ग्रुप 1 ग्रुप, ठीक है। अब 0 ग्रुप में मोर देन 1 रहेगा, तो उसको भी 0 1 ग्रुप में डिवीजन करना, ना बाकी जो 1 ग्रुप में था उसको भी सेकंड स्टेप में 0 1 ग्रुप में लाना जरूरी है। सो इन दैट वे ऑलवेज ईच एंड एवरी फेज में तुमको 0 1 लाना इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। सो ये है तुम्हारा प्रोसेस, कोडिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि हाँ तो किसी को डाउट होगा तो हम और एक बार रिपीट करेंगे। ये है तुम्हारा शैनन फेनो कोडिंग, शैनन फेनो कोडिंग। ये टेबल टेबल में हम अच्छे तरीके से हम नोट बना के दिए हैं। ये ग्रुपिंग, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। ये ग्रुपिंग होने के बाद
ये जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप के बाद देखो लास्ट में और एक कॉलम क्या है ना, नंबर ऑफ बीट्स पर मैसेज। ये तुमको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज, हम लोग को कितने कितने सारे मैसेज था, 8 मैसेज था, M1 से M8 था। तो इसका नंबर ऑफ बीट कितना कितना है ये तुमको फाइंड आउट करना है इन द लास्ट कॉलम। तो इन द लास्ट कॉलम देखो यहाँ पे, देखो M1 का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ। तो देखो यहाँ पे ओनली जीरो, नो बीट, सो जीरो। फिर देखो M2 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/8। इस पे देखो 100, देखो 100, देखो 100 हो गया। अच्छा M3 को देखो, ये था तुम्हारा M3, ये है तुम्हारा M3 का वैल्यू कितना है, 101, सो 101 लिख दिया। हाँ M4 में आ, M4 ये है तुम्हारा M4 में देखो, ये तुम्हारा M4 में क्या मिला देखो, 1100, देखो 1100 हो गया ना। देखो M5 में देखो, ये है तुम्हारा M5, ये M5 में क्या बीट देखो, 1101, 1101, 1101, ये हो गया 1101, है ना। फिर देखो M6, ये होगा M6, ये होगा तुम्हारा M6, 1110, ये बन गया। यहाँ तक M7 के लिए ये होगा, क्या होगा, 111110, 111110। M8 का, M8 में लास्ट लास्ट पार्ट क्या है, ऑल आर वन, वन 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 वन, वन 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 वन। सो दीज आर कोड, जब यहाँ पे लिखेंगे code। तो देखो ये कोड में कितने कितना करके तुम्हारा बीट है, नंबर ऑफ बीट्स पर मैसेज। तो फर्स्ट M1 में 1, ये 3, यहाँ पे भी 3, in this case also 4, 1100, so 4, in this case 1 2 3 4 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 5, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 5। सो क्या नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज मिल गया। तो फर्स्ट तुमको टेबल बनाना है, यू फाइंड फर्स्ट टेबल, put the messages and corresponding probability, then go for simplification stepwise. Okay, and finally, in the last column, you have to find out number of bits per message. Okay, I have mentioned the process. So now, after getting this number of bits per message, we will calculate some numerical values. Okay, some numerical values, because we go for finding out the average information per message in the interval is. So average information means the entropy H you have to find H. The formula is I is equal to 1 to infinity pi log 2 p base 1 upon pi. People know that this formula. So pi, that means p1, p2, p3, p4, p5, p6, okay, p7 जो प्रोबेबिलिटी टेबल में दिया हुआ है और प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो देखो प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ लॉग टू द बेस, ये 1 upon हाफ, सो 1/1 upon 2 मीन्स ऊपर में 2 हो जाएगा, सो हाफ लॉग टू द बेस 2, देन तुम्हारा 2 था 1/8, प्रोबेबिलिटी की 2 था। देखो यहाँ पे ये देखो प्रोबेबिलिटी 1/8 2 है M2 M3 के लिए,
सो इसलिए हम लोग क्या किए, 2 मल्टीप्लाई किए, 2 into 1/8 log 2 की बेस 8 प्लस 3 मैसेजेस का प्रोबेबिलिटी 1/16 है, इसलिए 3 into 1/16 log 2 की बेस 16, ऊपर में 16 हो जाएगा, क्योंकि देखो pi इज इक्वल टू 1/16, सो 1/1/16, तो क्या होगा, ये 16 हो जाएगा। सिमिलरली दोनों का 32 था, 1/32, so इसलिए 2 into 1/32 log 2 की बेस 32 हो गया। तो तुम लोग इजीली यू कैन कैलकुलेट इट, इस लॉग कैलकुलेशन, ये log 2 to 1 हो जाएगा, ये 2 to the power 2 3, सो ये 3/8 हो जाएगा, ये 4 ये, ठीक है, 2 to the power 4, सो 4/16 हो जाएगा। ऐसा करके तुमको ये कैलकुलेट, वेरी सिंपल कैलकुलेशन इज, एज यू नो। सो अल्टीमेटली क्या निकल गया, 2 into 5/16 बीट्स पर मैसेज, ये तुम्हारा एंट्रोपी निकल गया। ये लॉग टू दी बेस है, इसलिए ये सिंपल सा है। तो फ्रैक्शन होता तो तुमको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना पड़ता था, यहाँ पे क्या है 1 करके दिया है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो। 1/16 प्रोबेबिलिटी दिया है, 1/32 दिया है, तो इसलिए ऊपर में ये 32 हो गया, तो 2 to the power 5 है ये, सो 2 log 2 दी बेस टू 1 हो जाएगा, 5 बाहर में आ जाएगा, सो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट। So it's a simple calculation. Still, if you have doubt, so you can tell me, sorry, if you have any doubt. So you can tell me if you have any doubt. बोलो किसी को भी कुछ डाउट है इस कोडिंग में, टेबल बनाने में कुछ डाउट है, और कैलकुलेशन में कुछ डाउट है। कैलकुलेशन तो वेरी सिंपल है, टेबल कैसे बनाओगे तुम, वो भी मैंने बोल दिया, ठीक है। स्टिल यू, द मीन्स यहाँ पे तुमको पार्टीशन करना है, जो जो प्रोबेबिलिटी है ये दिमाग में रखो, पार्टीशन करना है, एंड पार्टीशंस मस्ट बी, दो पार्टीशन में मस्ट बी द टोटल प्रोबेबिलिटी एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। तब तुम ये ग्रुप बनाओगे, दो ग्रुप में प्रोबेबिलिटी का, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी दो ग्रुप में लगभग क्लोज होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो ग्रुप नहीं है। तो ये था तुम्हारा स्टेप। सो हम लोग शैनन फेनो कंप्लीट किए हैं, हबमैन की तरफ हम लोग जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है शैनन फेनो में तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये टेबल बनाने के लिए और ये सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, तो ये भी टोटल एंट्रोपी तो मैंने कर दिया, ये निकल गया। उसके बाद द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज, ये भी तुमको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज एल इज इक्वल टू summation over I is equal to 1 to m to p of xi and ni. ni क्या है ना, ni is your number of bits, जो लेंथ था वो, जो लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्रोबेबिलिटी था, 8 मैसेज था, 8 प्रोबेबिलिटी, इसके 1 to 8 p of xi and ni. So p of x1 n1 plus p of x2 n2 plus p of x3 n3 plus p of x4 n4 plus p of x5 n5 p of x6 n6 plus p of x7 n7 plus p of x8 n8, ये करके लीजिए। देखो तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मैसेज का कितना है, हाफ है, n1, तो m1 मैसेज का लेंथ कितना था, 1 था। देखो ये देखो x1 जो है और m1 जो है प्रोबेबिलिटी लेंथ 1 है, m2 का लेंथ 3 है, तो l1 इज सॉरी n1 इज 1, n2 3 है, तो ये n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8, तो ये टेबल से तुम्हारा n का वैल्यू मिल गया और यहाँ प्रोबेबिलिटी मिल गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मिल गया और लेंथ भी मिल गया, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज। तो हाफ इंटू 1 इंटू प्लस 1/8 पी ऑफ x2 का प्रोबेबिलिटी 1/8 था, एंड उसका लेंथ कितना था मैंने बोल दिया, टेबल में है 3 है,
सो नेक्स्ट जो है वो अभी 3 है, बाद में जो है उसका 4 है, 4 है, 4 है, और लास्ट जो था लास्ट दो का, लास्ट दो का दैट इज n7 and n8, n7 and n8 था तुम्हारा 5 5 करके। सो ये 5 ये 5 हो गया। सो कुल मिलाकर 2 into 5 by 16 बिट पर मैसेज मिल गया। तो ये तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज मिल गया। उसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी मींस जो एंट्रोपी मिला एच डिवाइड बाय जो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज मिला, सो एच बाय एन। सो ये काट करते हैं, सो दैट मींस the ratio of h by l, so that is unit. If you make percentage, it will be 100%. So that is your Shannon Fano coding. Okay, that is your Shannon Fano coding. Now you can move for Hammond coding. So here also we'll take one example. तो देखो ये मैसेज ऐसे ये प्रोबेबिलिटी है x1 का 0.4, x2 का 0.2, x3 का 0.12, x4 का 0.08, x5 का 0.08, x6 का 0.08, x7 का 0.02। ठीक है, तो ये है मैसेजेस, 7 मैसेजेस एंड उसका प्रोबेबिलिटीज इज गिवन हियर। सो लास्ट नाउ लेट्स गो फॉर टेबल। तो फर्स्ट टेबल में क्या है देखो, मैसेजेस x1 x2 x3 4 x4 x5 x7 ऐसा करके दिया है। ठीक है, नाउ मैसेजेस probability is also given 0.4 0.2 0.12 0.08 0.08 0.08 0.04। now the fast reduction, so देखो फास्ट रिडक्शन में जाने से पहले कि जो लास्ट में जो अच्छा यहाँ पे तुमको क्या है कैसे करना है, देखो ये प्रोबेबिलिटी देखो बड़ा से छोटा यू हैव टू अरेंज इट। सो नाउ लास्ट जो दो है, देखो ये जो लास्ट जो दो प्रोबेबिलिटीज को देखो, ये 0 ग्रुप में है, ये 1 ग्रुप में, समझ गए। So 0.08 is 0 group, 0.04 is in 1 group. Now add them 0.08 and 0.04. If you add it, what will be the value? It will be 0.12. 0.08 plus 0.4. So if you add it, so what will be the outcome? 0.12. तो देखो 0.12 देखो कहाँ आ गया, तो देखो 0.12 x3 and x4 जो है x3 and x4 में बीच में आ गया। लिसन एवरीवन, ये x3 x4 बीच में क्यों आ गया x3? क्योंकि ये देखो बड़ा से छोटा, ठीक है, अरेंजमेंट है। तो x4 के लिए 0.08 है और x3 के लिए 0.12 है, तो 0.12 के ऊपर में तो नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए 0.08 के ऊपर में और 0.12 नीचे में ये वैल्यू पुट हो गया। सो 0.12 हो गया, करेक्ट। सो फास्ट रिडक्शन में तुम क्या किए, 0.12 ले आए। अच्छा ना सेकंड रिडक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये लास्ट दोनों में क्या है 0.08 0.08, तो ये 0.08 0 ग्रुप में, ये 0.08 1 ग्रुप में, 0.1 ग्रुप में, फिर उसको ऐड करो। सो 0.08 ऐड करने से क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। तो ये देखो एरो देख के मैंने दिखाया यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने दिखाया, कोई कंफ्यूजन नहीं। एरो देख के यहाँ पे देखो 0.16, तो 0.16 कहाँ होगा ना, 0.12 और 0.2 बीच में होगा। 0.2 है x2 के लिए और x3 के लिए है 0.12, सो 0.12 और 0.2 बीच में 0.16 हो जाएगा। ठीक है, इसी में कोई कंफ्यूजन नहीं। सो ये बीच में हो गया। नाउ देखो थर्ड रिडक्शन के जाने से पहले सेकंड जो रिडक्शन था, ये लास्ट दो प्रोबेबिलिटी क्या है ना 0.12 है ना 0.12, सो ये 0 ग्रुप है, ये 1 ग्रुप है, ऐसा करके तुम डाल दिया 0.12 ये 0.12 0 ग्रुप ये 1 ग्रुप। नाउ तुम ये क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तुम ऐड करो। सो 0.12 प्लस 0.12 क्या हो जाएगा ना 0.24 हो जाएगा। सो थर्ड रिडक्शन में ये 0.24 लाना जरूरी है। तो कहाँ ये बैठेगा ना, इसका जो पोजीशन है उस पोजीशन में बैठना है। तो देखो ये 0.2 है और ये 0.4 है, तो इसका बीच में ही 0.24 होगा, क्योंकि 0.2 से वो ज्यादा है और 0.4 से वो कम है।
इसलिए देखो ये मिडिल में बैठ गया, 0.24 में वो बैठ गया। ठीक है ना, देखो ये लास्ट में क्या है, 0.2 है और 0.16 है, तो ये 0 ग्रुप में आ गया, ये 1 ग्रुप में आ गया। ठीक है, 0 एंड 1, लो ये देखो लास्ट दोनों को 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा करते करके हम लोग जा रहे हैं एंड ऐड कर रहे हैं, वो एडिशन वैल्यू नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। तो ये ऐड करो 0.2 एंड 0.16, तो क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 0.36 आ गया, रेड कलर में हम दिखाएं 0.36। ये 0.4 से कम है, 0.24 से ज्यादा है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ये दो है, 0.36 है, 0.24 है, इसको 0 ग्रुप में डाल दिया, ये 1 ग्रुप में डाल दिया। ना 0.36 एंड 0.24 ऐड करो 6, ये क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इफ यू ऐड दीज टू नंबर्स, तो ये 0.6 हो जाएगा। सो फिफ्थ रिडक्शन में देखो 0.6 आ गया, और ये जो 0.4 था 0.4 सेम है, क्योंकि ये 0.4 है, ये 0.6 हो गया, तो 0.6 कहाँ होगा ना, 0.4 से ज्यादा वैल्यू है, इसके ऊपर में चला गया है। 0.6 ऊपर में है, 0.4 नीचे में है। लास्ट में तुम क्या करोगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1। हर टाइम जो लास्ट जो दो प्रोबेबिलिटी होगा उसका तुम 0 एंड 1 बनाओ। तो ऐसा करके, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, जो मैंने बोल दिया अभी अभी ये दिमाग में रखो, और कुछ डाउट है तो बोलो। कैसे तुम ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। आज तुम ये अरेंज करो, देखो ये बड़ा वैल्यू छोटा 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 ऐसा करके मिनिमम आ गया, इसे अरेंजमेंट करना होगा। उसके बाद ये जो लास्ट दो होगा 0 1, लास्ट दो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 करके हम लोग जाए, और लास्ट दोनों को ऐड करके वो प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो वैल्यू होगा, वो नेक्स्ट कॉलम में उसका जो पोजीशन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का पोजीशन होगा, उसी में तुमको वो पुट करना, नथिंग मोर देन दैट। तो ये जो मैंने बोल दिया, ये ध्यान से रखो, ये दो टेबल, और नेक्स्ट क्लास में ये बाकी सारे जो चीज है वो हम बोल, ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नया चीज है। ये दोनों टेबल, ये दो टेबल को तुम अच्छे से देखो घर में, फिर कुछ डाउट होगा तो तुम कल मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अभी भी पूछ सकते हो, कुछ मन में डाउट है तो। बोलो, किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके, बात फिर से घर में एक बार दोबारा देख देख लो। फिर कुछ डाउट होगा, अभी मान लो नहीं है, लेकिन घर में पढ़ाई करने के टाइम कुछ दिमाग में आ गया, इसे ये सर क्या बोले थे और कुछ डाउट हो गया, तो वीडियो भी तुम देख सकते हो, उसके बाद तुम कल क्लास में भी बात कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। कल ये टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ नया चीज़ है थोड़ा देखो घर में, उसके बाद हम, और ज़्यादा नहीं लगेगा, ये 5 से 10 मिनट लगेगा, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। कल शायद मेरे टाइम में तुम्हारा प्रियंका मैम क्लास लेंगे शायद, उसके बाद मेरा क्लास होगा, प्रियंका मैम के साथ मेरा स्वैप हो गया, मैम बोले थे। ठीक है, कल का क्लास 10:40 से था शायद वो, उसके बाद। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके।